जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, ढाका की सड़कों पर आज जो हुआ वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक खुला जियोपॉलिटिकल सिग्नल था। कैमरा के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी, बंगाल के नेताओं को खुली चेतावनी और सबसे बड़ी और शॉकिंग बात यह कि एक बांग्लादेशी इस्लामिस्ट मॉब ओपनली डिमांड कर रहा है कि बंगाल की जो सत्ता है फिर से ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए। सोचिए, क्या किसी सॉवरेन डेमोक्रेसी के इलेक्शन रिजल्ट पर अब ढाका जो है और उसकी सड़कें और उसके जो भीड़ है, मॉब है, वो फैसला करेगी। ये सिर्फ बंगाल की पॉलिटिक्स नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। पिछले 14 साल तक बंगाल को कहा गया कि ओपन बॉर्डर से कोई खतरा नहीं है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो है वो एक मिथ है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, सेक्युलरिज्म है और ये सारा कुछ जो कुछ रहा। लेकिन आज जो ढाका ने खुद कैमरा पर कन्फेशन किया है, जब बंगाल में सत्ता बदली तो बांग्लादेश की जो रेडिकल्स ग्रुप है वो सड़कों पर क्यों उतरे, क्यों उन्होंने ये बात कही, क्यों उनको डर लग रहा है कि उनका प्रोटेक्टर जो उनका संरक्षक है वो चला गया है, क्यों भारत को अटैक करने की धमकी दी जा रही है। और अगर बंगाल की का जो जनादेश है, जनता ने जो चुना है, उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बंगाल का इलेक्शन सिर्फ कोलकाता में लड़ा नहीं गया, या उसकी जो स्क्रिप्ट है वो जो बॉर्डर पार भी उसका असर नजर आ रहा है। और आज की जो ये डिस्कशन है, आज का जो डिस्कशन है, अनकंफर्टेबल जरूर लग सकता है और बहुत सारे हार्ड हिटिंग यहाँ पर सवाल भी उठेंगे। लेकिन देश को ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या भारत ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर अपनी ईस्टर्न बॉर्डर जो आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड है उसको वो पूरी तरह से बनने दिया। क्योंकि जब फॉरेन रेडिकल ग्रुप ओपनली भारत की डेमोक्रेसी को चैलेंज करने लगे तो वो प्रोटेस्ट नहीं रहता, वो स्ट्रेटेजिक वार्निंग बन जाता है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा और उमेश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। अंबर जी वो क्लिप भी राम। प्ले कर दीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि क्या कितना बड़ा कंसर्न है ये। हमें वो प्रोटेस्ट की क्लिप दिखानी হওয়ার পর মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। মোদিকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আমরা ভারতে ইসলামী পতাকা উদ্দিন করব ইনশাআল্লাহ। শুভেন্দু এবং নরেন্দ্র মোদি অতি দ্রুত এই আগ্রাসন বন্ধ করুক, না হলে বাংলাদেশের জনগণ সে গাজাতুল হিন্দের ডাক দিবে, ভারতকে স্বাধীন করে টুকরো টুকরো করে দেবে ইনশাআল্লাহ। সারা বিশ্বে আজ মুসলমানদের উপর হামলা করা হচ্ছে, আমাদের মুসলমান ভাইদের পক্ষে আমরা আছি, আমরা প্রয়োজনে জীবন দিব। ভারত অভিমুখে মুফতি আমির মতো লং মার্চ করব, প্রতিবাদ করব। ভারতের নির্বাচনের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর উগ্র হিন্দুবাদীরা মুসলমানদের উপর এমন আক্রমণ শুরু করেছে যে তারা ঘর লুট করছে, দোকানপাট লুট করছে এবং মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। অর্থাৎ একটা রিপাবলিক এবং ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রের মধ্যে কিভাবে এই জঙ্গিবাদী মাত্রাচারা দিয়ে উঠছে, আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। সন্ধ্যা মোদি, তুমি যদি ঠিক না হয়ে যাও তাহলে বিশ্বের মুসলমান তোমাকে ছাড়বে না। তুমি হয়তো আজকে ঠিক আছো, ঠিক মনে রাখো, কালকে তোমার আসন ঠিক থাকবে না। এই জন্য বলি, সময় থাকতে তোমার আসন তুমি ঠিক করে নাও। আজ ভারতে হামলা হচ্ছে, আমরা এটা আশঙ্কা করছি সামনে আমাদের বাংলাদেশে হামলা হবে, তখন আমরা কোথায় যাব? এই জন্য নরেন্দ্র মোদি যদি অতি তাড়াতাড়ি হামলা বন্ধ না করে তাহলে বাংলাদেশে আমরা হিন্দুদেরকে নিরাপদে থাকতে দেব না। বিশ্ব তো মুসলমানকে খারাপ বানানোর চেষ্টা করে, আসলে বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় এবং যারা শান্তিতে বিশ্বাসী মুসলিম জনগোষ্ঠী, কিন্তু তাদেরকে উত্তক্ত করলে পুরো বিশ্বকে আমরা দেখাই দেবো মুসলমান জাতি কি করতে পারে। যা 71 সালে করেছি, দ্বিতীয়বার করবো ইনশাআল্লাহ। সারা বিশ্বের সকল মানুষই জানে, মুসলিম যদি কোনো এক দেশে নির্যাতিত হয় তাহলে কোন দেশে মুসলমান সেখান চুপ থাকতে পারে না। কিন্তু আজকে বড় আফসোসের সাথে বলতে চাই, আমার দেশের সরকার আজ পর্যন্ত টু শব্দ করে নাই। তিনি কি মুসলমান না? তিনি কি মুসলমানের সন্তান না? শেখ জিয়া কি মুসলমান ছিলেন না? তাহলে তিনি কেন আজ পর্যন্ত মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সেই নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে একটা টু শব্দ করে নাই? আজকে ভারতের মুসলমান নির্যাতিত, ফিলিস্তিনের মুসলমান নির্যাতিত, কিন্তু আমাদের দেশের সরকার টু শব্দ করে নাই। এই জন্য তাকে বলতে চাই, আপনি যদি মুসলিম সন্তান হয়ে থাকেন, উম্মতে মুহাম্মদী হয়ে থাকেন, তাহলে অতি শীঘ্রই নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে একটা আলোচনা করুন। तो ये जो
बोलते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं, बंगाली में बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि बस जो वर्ड्स है वही समझ में रही हो, बाकी सार इसका समझ पा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या बोल रहे हैं वो तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप भाव से सभी दर्शक समझ गए होंगे कि पूरी तरह से भारत नरेंद्र मोदी, शुभेंदु अधिकारी उनके विरोध में बोल रहे हैं और ममता दीदी के समर्थन में बोलते नजर आ रहे हैं। जी उमेश जी। देखिए, मुझे तो लगता है कि ममता दीदी अभी बांग्लादेश का चुनाव जल्दी लड़ने वाली है, क्योंकि अगर वो वहां हमने का आज चुनाव। उमेश जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी कि चलिए भारत में वेस्ट बंगाल में और साथ ही अलग और 4 राज्यों में इलेक्शन हुए, नतीजे आए और सबने एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन ममता दीदी हारी। ढाका के जो इस्लामिस्ट ग्रुप है वो बंगाल इलेक्शन रिजल्ट से इतने बेचैन क्यों है? जमात इस्लामी सारे के सारे यहाँ तक कि अब सड़कों पे आ गए, ये क्या कनेक्शन है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, क्या? देखिए 2 साल पहले जब शेख हसीना को हटाया गया और वहां पर ये जमात रेडिकल्स जो बाद में आए और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, नेशनल सिटीजनशिप पार्टी, उसके बाद कंटिन्यूस स्टेटमेंट आ रहे हैं जमात के, एनसीपी के और बाकी वहां के हार्डलाइनर्स के। इनफैक्ट गवर्नमेंट के अंदर भी तारिक उर रहमान के जो एडवाइजर हैं उन्होंने भी भारत को वार्निंग दी है। देखिए, सब वार्निंग दे रहे हैं हमें। इनको याद रहना चाहिए कि 1971 पे भारत ने इनको पाकिस्तान से आजाद करवाया। ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। पाकिस्तान की फोर्सेस जो थी ये इनकी औरतों को रेप करते थे। अगर भारत 10 साल इनको आजाद नहीं कराता था तो इनकी नस्ल ही खत्म हो जाती। तो आप सोचिए, ऐसी हालत हो चुकी थी। उसके बाद भारत ने इनको लिबरेट किया, इनको असिस्टेंस दिया, इनको एक तरह से हमारी जो टेक्सटाइल पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी है कांग्रेस ने हमारे देश के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एक तरह से इफेक्ट करवाया और इनको सारी रियायत दी। हम इनको सारी रियायत देते थे, इनको कॉटन देते थे, इनको रियायत में हम इनको इलेक्ट्रिसिटी देते थे, पानी देते थे और इनको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और एयरपोर्ट की फैसिलिटी भी देते थे, जिसके कारण इनका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ा था। और एक टाइम तो इनकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो भारत से ज्यादा हो चुकी थी। तो बांग्लादेश अगर डेवलप किया पिछले 15 साल में, इट वाज ओनली ड्यू टू द जेनरोसिटी ऑफ भारत। और आज आप देखिए कि जैसे ममता दीदी हारी हैं, इन्होंने बंगाल की हार का जो मातम है वो ढाका की सड़कों पर मनाया जा रहा है। और क्या बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को खत्म कर देना चाहिए, शुभेंदु अधिकारी को खत्म कर देना चाहिए, भारत को अलग कर देना चाहिए, बंगाल को भारत से अलग कर देना चाहिए। वो एक तरह से बोल रहे थे कि मुसलमान जो हैं, जो बंगाल में हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैं बता देता हूं अंबर जी, ये एक्शन होगा बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पे, भारत के मुसलमानों पे नहीं होने वाला। और इसी के लिए वहां पर वो एक तरह से मातम बना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कल ही शुभेंदु अधिकारी ने जो लैंड ट्रांसफर था उसका जो उसके ऊपर जो कैबिनेट का जो उनको जो ट्रांसफर करना था, लैंड ट्रांसफर, वो बीएसएफ को वो फाइल साइन करके दे दी है। अगले 45 डेज के अंदर एक तरह से आप देखेंगे फेंसिंग हो जाएगा, फिर उसको इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, फिर बाद में जहां पर फेंस नहीं बैठाया जाएगा वहां पर जंगली जानवर जैसे क्रोकोडाइल्स और जहरीले स्नेक्स उनको तालाब में रखा जाएगा। तो ये जो आने जाने का जो बेटोक चल रहा था ये सब खत्म हो जाएगा। मालदा और मुर्शिदाबाद में जितने भी और साउथ परगना में जितने भी ये घुसपैठिए हैं, इनको अगर ये भारत में रह गए तो वापस नहीं जा पाएंगे। इनके स्मगलिंग ट्रेड जो है, इनके जो इलीगल ट्रेड है, सब बंद हो जाएंगे। हीरोइन है, ड्रग्स है, इलीगल वेपन्स है, बॉम्ब्स की फैक्ट्री मिली है मालदा और मुर्शिदाबाद में। भारत के अंदर एक तरह से उपद्रव मचाते हैं। ये जो बेरोक चल रहा था अनचेक्ड माइग्रेशन, वो खत्म हो जाएगा। इसी के वजह से वहां पर एक तनाव का माहौल आ चुका है, लोग घबरा चुके हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने तो जितने भी ममता बनर्जी के जितने भी अधिकारी थे सबको निलंबित कर दिया है। और चीफ सेक्रेटरी ने बोल दिया है कि कोई भी फाइल जो है वो दफ्तर से कोई भी लेके नहीं जा सकता। तो एक तरह से आप देखिए कि जो एक्शंस हो रहे हैं उससे बांग्लादेश डर चुका है। सबसे बड़ी बात है कि कल अगर बांग्लादेश का अगर हम पानी बंद करना चाहे, गैंजेस वाटर ट्रीटी जो हम 30 साल हो चुके हैं, मार्च के अंदर
वो वापस रिकंसिडरेशन में आई है। देखिए उस ट्रीटी को अभी तक हमने रेटिफाई नहीं किया है, और ये वही बांग्लादेश है जो भारत से भीख मांगता है कि हमें डीजल दे दो, हमें चावल दे दो, हमें शुगर दे दो, हमें इलेक्ट्रिसिटी दे दो, और भारत को वार्निंग दे रहा है। सबसे बड़ी बात है। और इनको ये समझ जाना चाहिए, अगर भारत की फोर्सेस चाहे तो 24 घंटे में बांग्लादेश का बैंड बजा सकते हैं। और अभी ये लोग जो है पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, इसके लिए ये वापस पाकिस्तान के गुलाम बनना चाहते हैं, ये ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहते हैं। इनको तो हमने एक बहुत बड़ी गलती की है अंबर जी, इनको इंडिपेंडेंस दिला के, इनको तो हमें कभी इंडिपेंडेंस दिलाना ही नहीं था। और ये पाकिस्तान के जुल्मों से, अगर पाकिस्तान की जो फोर्सेस है इनके ऊपर जुल्म करती रहती, ये उसी के लायक है। ये एहसान फरामोश मुल्क है, मैं आपको सीधा बता देता हूं। और वहां पर आप देखिए कि वहां पर जो सही लीडर है शेख हसीना, इनको तो उन्होंने देश निकाला दे दिया है, और वो भारत को एक तरह से गाली देते हैं क्योंकि हमने शेख हसीना को यहाँ पर एसिलम देके रखा है। पर सबसे बड़ी बात है कि वहां पर ये जो जिहादी है, जो अमन चैन की बात करते हैं, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया, हिंदू दुकानों को जलाया है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया है। तो ये किस बात की बात कर रहे हैं? अभी इनको सब कुछ मिला हुआ है। आज देखिए मंडे और ट्यूसडे के दिन, वर्किंग डे के दिन, इतने सारे लोग जुलूस कर रहे हैं। इनको तो भूखे मरने की नौबत आने वाली है, इनकी इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ है। और मेरा तो ये भी मानना है कि नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट को, कि इनकी जितनी भी हमने इनको सहायता देने की बात की है, बजट में एक फंड अलोकेट किया है, वो सब स्क्रैप कर देना चाहिए, तब जाके इनको समझ में आएगा। आप सोचिए ढाका की सड़कों पे हो रहा है, अगर क्या दिल्ली की सड़कों पे ऐसे हम अलाउ कर दें, कल बजरंग दल को हम अलाउ कर दें, विश्व हिंदू परिषद को अलाउ कर दें कि बांग्लादेश के अंदर जो तारिक उर रहमान के अगेंस्ट ये से डेमोन्स्ट्रेशन हम अलाउ कर सकते हैं क्या? आप सोचिए, शुड वी अलाउ बजरंग दल, शुड वी अलाउ विश्व हिंदू परिषद टू कैरी आउट अ मार्च? हम दिल्ली छोड़ दीजिए, कैलकाटा में भी हम नहीं अलाउ कर रहे हैं, और ये ढाका में बैठ के ये सब बात कर रहे हैं। इससे पहले इनका जो नौसिखिया जो अमेरिकन पप्पू था मोहम्मद यूनुस, उसने तो बोल दिया था वी आर द गार्डियन ऑफ द 7 सीज। इसने तो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप निकाल लिया था। और उसके जाने के बाद तारिक उर रहमान मेरा ये अनुमान है कि ही इज एन इनएफेक्टिव प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कंप्लीटली फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए पिछले 3-4 दिन से, जब से बीजेपी सरकार आई है बंगाल के अंदर, तब से सदमा लग चुका है। इनफैक्ट बंगाल के अंदर तो जो रिपोर्ट्स आई थी कि आईएसआई और लश्कर के उग्रवादी जो हैं वो बांग्लादेश आ चुके हैं, और वो भारत के अंदर घुसपैठ करना चाहते हैं, ताकि प्रधानमंत्री की जो रैली थी जिसमें शपथ ग्रहण समारोह था ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, उसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करने की इनकी इच्छा थी। तो वो वक्त रहते हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तरह से बहुत बड़ा जो डिजास्टर है उसको अवॉइड कर दिया है। जी, लेकिन उमेश जी अब यहाँ पर सवाल ये है कि बंगाल में इलेक्शन होते हैं, नतीजे आते हैं, बीजेपी सरकार में आती है, लेकिन दर्द बांग्लादेश में ज्यादा हो रहा है। लेकिन बंगाल पॉलिटिक्स पर जो क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस है वो इतना ज्यादा आपको नजर आ रहा है क्या, जितना कि हम देख रहे हैं कि एकदम हाई तौबा मची हुई बांग्लादेश में? और साथ ही जो ये नेटवर्क है वो कितना गहरा है और कितना चैलेंजिंग ये होने वाला है सरकार के लिए अभी इस नेटवर्क को ढूंढना? हालांकि ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन अगर किसी भारतीय स्टेट में इस तरह से इलेक्शन होते हैं, उन पर फॉरेन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनका इस तरह से रिएक्शन आना, ये क्या मतलब इंटरनल मैटर बन जाता है उनके लिए? क्या है मतलब, कैसे देखते हैं? देखिए इसका मतलब एक ही चीज है कि ममता दीदी जो है इनकी फेवरेट थी, इनके कारण ही ये जो जिहादीज है ये बंगाल के अंदर छुप सकते थे। बांग्लादेश के अंदर कोई भी आपराधिक घटना करके भारत के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर शरण ले लेते थे, और इनको सपोर्ट करती थी भारत की वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। ये मुझे समझ में आ रहा है। और कल आप देखिए बांग्लादेश के पत्रकार ने बोला भी था कि कैसे बांग्लादेश के अंदर जो रेडिकल्स हैं
वो बंगाल के अंदर छुपे पड़े हैं और वहां पर वो नेटवर्क पैदा कर रहे हैं, नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। हाफ फ्रंट का जो स्लीपर सेल्स है वो पूरा नेटवर्क वो तैयार कर रहे हैं। तो ये भारत की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा था। जैसे जब बंगाल इलेक्शन हमने जीता था तभी उस दिन बोल दिया था हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है हाफ फ्रंट के ऊपर। आज आप देख लीजिए जितनी भी सरकारें हैं ईस्ट के अंदर वहां पर बीजेपी है, या बिहार में बीजेपी है, उड़ीसा में बीजेपी है, बंगाल में बीजेपी है, त्रिपुरा में है, मिजोरम में है। तो बांग्लादेश सब जगह से घिर चुका है। अब भारत को अगर कोई काइनेटिक एक्शन लेना है और हमें अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक्सपैंड करना है तो हमें वेट नहीं करना चाहिए और उसको एक तरह से एक्सपैंड करने की जरूरत है, क्योंकि इन जिहादियों को अगर कितना भी हम सपोर्ट कर लें ये एहसान फरामोशी रहने वाले हैं। इनको कोई भी एक तरह से सहायता देना ये एक इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी तोहमत है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल उमेश जी ये है कि क्या जो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है वो सिर्फ डेमोक्रेटिक इशू नहीं बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है। सबसे बड़ा रीजन यही लग रहा है कि ममता दीदी ने जो सिंडिकेट क्रिएट किया हुआ था वो टूट रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। देखिए उधर बहुत सारे काम होते थे, इलीगल फंडिंग चलती थी, जमात की पूरी फंडिंग खत्म होती जा रही है। और जैसे ही बॉर्डर फेंस होगा तो दोनों ही देशों के बीच में जो इलीगल स्मगलिंग चल रहा था कैटल का, फिर बाद में ड्रग्स का, वेपन्स का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों को अगवा करके एक तरह से उनको गायब कर दिया जाता था और इंटरनेशनल फ्लैश मार्केट में उनको बेचा जाता था। कम से कम 40 से 50 हजार लड़कियां लापता है। ये बहुत बड़ा एक तरह से जो सर्जिकल स्ट्राइक है, अगर 45 डेज के अंदर भारत सरकार पूरा बॉर्डर फेंस करती है, फेंसिंग के साथ मेरा ये भी मानना है अंबर जी, उसको इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर देना चाहिए। तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, फेंसिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बांग्लादेशी रोहिंग्यास बैठे हैं भारत के अंदर वो जा नहीं पाएंगे। फिर तो उनको समुद्र के रास्ते से ही होके जाना पड़ेगा, वो उनके लिए कठिन हो जाएगा। तो ये जो और बताया जाता है कि लार्ज स्केल रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, लोग वापस जा रहे हैं बांग्लादेश, तो इससे भी वहां पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर जॉब्स नहीं है, वहां की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बहुत बड़ा एक बोझ बनता जा रहा है। इसके लिए ही ये आप देखिए कि तारिक रहमान बोल रहा है, फिर बाद में नाहिदुल इस्लाम बोल रहा है, और ये जितने भी जिहादी है ढाका की सड़कों पे ये परेशान हो चुके हैं, विचलित हो चुके हैं कि नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने दोनों ने मिलकर इनकी नींद हराम कर चुके हैं। पहले तो आसाम के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा के सीएम थे, ये सब ने किया था। बंगाल जब भारत भाजपा के पास आया था, इसके बाद जमात की कंप्लीट जो एक्सेस है इंडिया के अंदर वो खत्म हो चुकी है और इससे वो डर चुके हैं। और मालदा और मुर्शिदाबाद में इन्होंने 15 साल से जो बेस बना के रखा है, जो इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने स्थापित किया है, वहां पर अब वो कर नहीं पाएंगे। ये एक तरह से ममता की एडमिनिस्ट्रेशन जाने से इनका एक बहुत बड़ा जो हितैषी था, पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलता था, वो खत्म हो चुका है और इसमें बहुत मोटी कमाई भी होती थी इन सब की। तो इससे एक तरह से भारत की सुरक्षा भी फायदे में हो चुकी है। दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी अब एक और सवाल है, वो ये कि आज तो नारे लग रहे हैं, कल क्या ये ऑर्गेनाइज्ड एक डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं हो सकती जिस तरह से चीजें हो रही हैं? क्योंकि ममता दीदी ने यहाँ से ही शुरुआत की थी, आपको अगर ध्यान हो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने इस्तीफा ना देने की बात, उन्होंने कहा नहीं दूंगी इस्तीफा, बर्खास्त कर दो। उधर से फिर जमात और सबके स्टेटमेंट, अब यहाँ तक कि सड़कों पे आ गए। तो आखिर ये और फिर नैरेटिव बिल्डिंग भी ये शुरू हो गई। इनफैक्ट जो वो वीडियो हमने प्ले की थी उसमें स्टार्टिंग में जो चीजें बोल रहे थे, जिसमें बोला जा रहा था कि भारत के मुसलमान, गाजा के मुसलमान, उन पे जुल्म हो रहा है, उनकी दुकानें, उनका सब कुछ छीना जा रहा है एंड एवरीथिंग। तो एक नैरेटिव बिल्डिंग की शुरुआत हो चुकी है। मैं तो इनको पूछना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में जो मुसलमान हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? फिर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान में जो मुसलमान हैं जिनको टर्की परसिक्यूट कर रहा है, ये उनके ऊपर क्यों नहीं जुलूस निकालते? चाइना के अंदर यूगर मुस्लिम्स को आप देखिए, वहां पर मर्दों को रिकॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाके उनसे बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं
और जो वहां पर 1 मिलियन लेडीज है उनके साथ चाइनीज पीएलए आर्मी रात को जाके सोती है, एक एथनिक जेनोसाइड कर रही है। ये जो मुसलमान है ये बांग्लादेश के, उनको क्या उइगुर मुसलमान याद नहीं आते? क्या उन्होंने अपना ईमान चाइना और एर्दोगान के पास गिरवी रख दिया है? मेरा एक क्वेश्चन उनसे ये है कि मुसलमान का दिल क्या सिर्फ गाजा के मुसलमानों के लिए होता है? ये चीज मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी मुसलमान मुसलमान नहीं है, क्यों सिर्फ वो चाइना में रहते तो या मुसलमान नहीं हो सकते? ये हमें पूछने वाली बात है इन लोगों को। क्यों गाजा के लिए इनका दिल क्यों धड़कता है? क्योंकि क्या यूएस से फंडिंग आता है, डीप स्टेट फंडिंग कर रहा है। और भारत के अंदर भी ये जो नैरेटिव है ये इसके लिए बनाया जा रहा है ताकि भारत को बैकफुट पे लेके आया जाए और ये अपना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनाते रहे। सबसे बड़ी बात है, इनको पूछना चाहिए युगर मुसलमान के बारे में क्यों नहीं बोलते। इनको पूछना चाहिए मोहम्मद बिन सलमान को कि जो ओपेक को, जो अपने आप को मुस्लिम देशों का रहनुमा समझता है, वो क्यों चाइना के सामने चुप है? क्या लॉर्ड जी जिनपिंग इन मुसलमानों का क्या नया पैगंबर है? ये पूछना चाहता हूं मैं बांग्लादेशी मुसलमानों को। बिल्कुल बेजी, ये बात हमेशा हम उठाते आए हैं कि ये जो सिलेक्टिव खामोशी है या फिर सिलेक्टिव आउटरीच, दोनों कुछ भी कह लें, बात देखी है, ये आखिर क्यों है? आज ढाका ने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, आज ढाका ने मास्क उतार दिया है जो सालों से अब तक जो चलता आ रहा था, एकदम जो ईयर्स तक एक नैरेटिव था ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिक्स के नाम पर ये जो सब बेचा गया है एवरीथिंग, आज उसके बीच का जो रेडिकल इकोसिस्टम है वो खुद सड़कों पर आ गया है। भारत को अब डिसाइड ये करना होगा कि क्या बॉर्डर फेंसिंग अभी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या फिर नेशनल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। हालांकि अमित शाह जी ने 45 दिन का समय दिया है, 45 दिन में तो नहीं होगी, बट एक मैसेज है कि भाई जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में बॉर्डर फेंसिंग की जाएगी। क्योंकि जब किसी भी राष्ट्र की जो कैपिटल है वो सड़कों पर भारत के खिलाफ स्लोगन्स लगाती है और बंगाल की जो कुर्सी है उसको लेकर धमकियां दी जाती है, तो इश्यू जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं रहता, ये सॉवरेनिटी का इश्यू बन जाता है। और याद रखिए, डेमोक्रेसी तब तक सेफ है जब तक उसके डिसीजन खुद भारत या फिर भारत की राजधानी दिल्ली या फिर वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में लिए जाए, ना कि ढाका के सड़कों। आप सब समझ रहे होंगे कि ये कहाँ से इसके तार जुड़े हैं, शुरुआत जैसे हुई और अब ये कैसे इसके रिपल इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। मेजी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।